Hello everyone, a very fresh morning to all. So, we have completed chapter 1 and chapter 2. In chapter 1, we learnt about types of plants and parts of plants. In chapter 2, we learnt about how plants helps us. Okay? We get most of our food from plants. Okay? So just quick recap करेंगे, then we will start reading section. Okay, you all know chapter होने के बाद हम reading का रखते हैं. So we learned types of plants. There are 5 types of plants in first chapter: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. And we learned about parts of plants like stem, seed, flower, leaf, fruit and root. So in second chapter we learned uses of plants. Okay, plants gives us many things, many kind of food. Like plants gives us fruits and vegetables, and we eat vegetables, parts of plants. Okay, like stem vegetable, roots vegetables, leafy vegetables, flowers vegetables and seeds. Okay, now plants gives us cereals and pulses जो हम daily food में लेते हैं. Okay, and pulses, tea, coffee, cocoa and sugar. We get spices from plants, we get oil from plants. Plants gives us medicines. Plants gives us fibers. These are natural fibers. Okay, in second chapter we learned natural fibers. In third chapter we learned sheep gives us wool to make sweaters. Okay, so plants gives us paper, rubber and gum. Plants gives us wood. Plant gives us soaps, toothpaste and perfumes. And one thing I would like to say you, so you have all made wonderful charts and projects in EVS. I am very delighted. Okay, so I am very happy to see all that projects. Very nice of you all. And that projects made me very happy. I am very delighted to see that all projects. Okay, so thank you everyone. आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाया EVS का. I am very happy. Okay, I am extremely happy. Okay, so इसमें भी हम थर्ड चैप्टर में कुछ अलग चार्ट बनाएंगे, but after vacation. Okay, this is your last video. इसके बाद हम वेकेशन पे जा रहे हैं. वो कितने दिन के लिए हम मेंशन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, तब तक आप रिलैक्स हो जाइए. ओके, सो एनिमल्स दैट हेल्प्स अस. ओके, इन लास्ट चैप्टर वी लर्नड हाउ प्लांट्स हेल्प्स अस. सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड एनिमल्स आल्सो हेल्प्स अस. ओके, सो कलर ऑल दोज एनिमल्स that you would keep as pets at home. Circle the animals that people would keep at a farm. सर्कल किस में करना है हमें? जो हम फार्म में रखते हैं उसको हमें सर्कल करना है. ओके, देखिए मैं कर रही हूँ. शीप, गोट, काउ, ये सब को हम फार्म में रखते हैं. ओके, काउ एंड शीप को सर्कल करना है और हमें क्या करना है? पेट्स को कलर करना है. ओके, सो प्लीज यूज ओनली क्रेयॉन्स कलर्स. ओके, डोंट यूज स्केच पेन्स बिकॉज इसके वजह से पेजेस खराब हो जाते हैं. ओके, सो नाउ पेट्स. दिस इज पेट, डॉग इज पेट, रैबिट इज पेट. हियर आपको फिश दिख रहा है. फिश इज ऑल्सो पेट. कैट इज ऑल्सो पेट. पैरट इज ऑल्सो पेट. ओके, सो कौन से है? कैट. हियर कैट आपको दिख रहा है.
cat, dog, rabbit, parrot and fish. फिश आपको दिख रहा है? ओके इन सब को आपको कलर करना है. ओके ये जो फॉर्म में रखने वाला एनिमल्स है मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स. दीज आर पेट एनिमल्स एंड दीज आर वाइल्ड एनिमल्स. लॉयन, टाइगर एंड जिराफ. इसके बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. आज आपको हार्ड वर्ड्स प्लस ए एक्टिविटी कंप्लीट करना है. ओके सो रीडिंग सेक्शन मैंने लास्ट थर्सडे कल ही जो मैंने ऑनलाइन क्लास लिए थे तो रीडिंग का रखा था. ओके तो रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके आप रीड नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे रीड करोगे. ओके सो प्लीज़ रीडिंग ध्यान से सुनिए. ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे. ओके जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ हमें रुकना है. जब पूरा रुकने के बाद फिर दूसरा चालू करना है. लेकिन जहाँ कॉमा रहता है वहाँ थोड़ी देर रुकना है. लगातार नहीं पढ़ते रहना है हमें. ओके सो डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स such as cows, horses, goats, sheep, ducks and hens can be tamed and kept at farms or homes. The animals that can be kept at farms or homes are called domestic animals. This is not collared, this is called. Okay so tamed meaning जानते हैं हम. What is the meaning of tamed? An animal that has been trained to live with people. उसको हम tamed बोलते हैं. tamed means well trained animals जो हम humans के साथ रह सके. ओके तो जहाँ मैं पेंसिल लगती हूँ वो वर्ड को आप अच्छे से रिपीट करेंगे. इसी के लिए तो मैं रीडिंग सेक्शन लेती हूँ एक. ओके इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ रीडिंग. नेक्स्ट वी मेक होम्स फॉर सम एनिमल्स वी कीप. फुल स्टॉप. तो एनिमल्स का मैंने आपको कल होमवर्क दिया था. एनिमल्स एंड देयर हाउसेस वो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके हैंस in a coop, horse in a stable, cows in a shed. ए इसको आप ए बोलते हो. हॉर्स इन ए स्टेबल. नो नो आप इसको ए नहीं बोलना है, अ बोलना है. ये साउंड कैसे करता है? अ. हॉर्स इन अ स्टेबल. ओके नाउ एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज. We get milk from cows, goats and buffaloes. We drink milk to grow strong and healthy. ये जो लाइन है आपको अंडरलाइन करना है. जहाँ जहाँ मैं लिखती हूँ इम्पोर्टेंट लाइन वो आपको अंडरलाइन करना है. ओके ये भी आपको अंडरलाइन करना है. ये भी और ये भी और यहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन करना ही है आपको. ओके Milk is also used to make foods such as butter, cheese, ghee and curd. These foodstuffs are called milk products. Okay here is cow, goat and buffalo. मैंने आपको काऊ का पिक्चर भी निकालने के लिए दी थी. पिक्चर स्टेप बाय स्टेप. आई होप आपने किया है. वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज hens and ducks. Hen and duck, these are eggs. Clear? We get honey and wax from beehives. Beeswax is used to make candles. This is honey bee. This is beehive. हनी बीज के हाउसेस को beehive बोलते हैं. एंड इसके जो वैक्स बच जाता है हम उससे कैंडल्स बनाते हैं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीज वैक्स?
the waxy substance that bees use to make beehives. जो हनी बीज वो यूज़ करते हैं बीहाइव बनाने के लिए, उसके घर बनाने के लिए, उसको हम वैक्स बोलते हैं. ओके. We get meat from animals such as goats, chickens and fish. We get silk from silkworms. Silk is used to make cloths such as saris and scarves. We get wool from sheep. Wool is used to make sweaters, mufflers, etc. ये सब मैंने आपको वीडियो में दिखाया है. ओके. दिस इज सिल्कवर्म एंड दिस इज सारी. दिस इज शीप. शीप गिव्स अस वूल. वूल से यार्न तैयार होता है. इसके हम मफलर, स्वेटर्स, कैप्स, हैंड ग्लोव्स एक्सेट्रा बनाते हैं. दिस इज हनी. और हनी आपने खाया है. हनी टेस्ट में कैसा रहता है? स्वीट रहता है. ओके. सो नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 35. द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज goats, sheep, buffaloes and camels after they are dead is used as leather. Leather is used to make jackets, shoes, bags, belts and many more things. Okay, these are made of leather. Okay, शूज़, बैग, बेल्ट एंड जैकेट ये बना है लेदर से. और लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. लेकिन जब वो लाइव रहते हैं तब नहीं, जब वो मर जाते हैं तब उनका स्किन इस्तेमाल किया जाता है. ओके. एनिमल्स सच एज ऑक्सन, हॉर्सेस, डोंकीज, एलिफेंट्स and camels carry heavy loads for us. So हमारे लिए कैरी लोड कौन कौन से एनिमल करते हैं? ऑक्सन, हॉर्सेस, डोंकीज एंड एलिफेंट्स. ओके. दिस इज बुलक कार्ट. ये जो बुलक कार्ट है ये वुड से बना है और ये ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस से चलता है. ये चलता है ऑक्सन से. ओके. ऑक्सन ये जो व्हीकल है इसको मूव करता है, मतलब पुल करता है, खींचता है, तब जाके ये आगे बढ़ता है. ओके. दिस इज बुलक कार्ट. सम एनिमल्स हेल्प अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये आजकल की बात नहीं है क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे व्हीकल्स आए, जैसे लैंड व्हीकल, वाटर व्हीकल, एयर व्हीकल. ओके. लेकिन पहले के ज़माने में जब लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे या फिर एक गांव से दूसरे गांव को सामान पहुंचाना था, तब ये हॉर्स, एलिफेंट, डोंकीज और कैमल्स की मदद लेते थे. ओके. बट दिस इज लोड. जो लोड हेवी करता है ये हॉर्सेस, ऑक्सन, डोंकीज, एलिफेंट एंड कैमल्स है. ओके. मैंने वो भी पिक्चर दिखाया सारे एनिमल्स का. लेकिन अभी नहीं, जो पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में बहुत पहले, तब व्हीकल्स नहीं रहते थे, तब वो लोग ये इस्तेमाल करते थे. ओके. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है. लेट्स रिमेंबर. Name the following and the animals that we get these from. Also write their names in your mother tongue. ओके. यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है ये किससे हमें मिला है? We get milk from cow. We get eggs from hen. We get honey from honey bees. We get wool from sheep. We get silk from silkworm. ओके.
यहाँ पे मैंने एनिमल्स का नेम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है पता है आपको? आपके मदर टंग, अगर आप गुजराती हो तो यहाँ पे आपको इनका नेम गुजराती में लिखना है। लाइक आप कौ को क्या बोलते हैं गुजराती में, हेन को, बीस को, शीप को क्या बोलते हैं वो लिखना है। अगर आप हिंदी मतलब आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। लाइक कौ को गाय बोलते हैं, हेन को आप क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इन हिंदी। ओके, सो आप अगर हिंदी भाषी है तो आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। अगर आप गुजराती बोलते हो तो यहाँ पे आप गुजराती लिखना है। अगर आप साउथ के हैं तो फिर यहाँ पे आपको साउथ के नेम्स लिखना है। ओके, मतलब साउथ के भाषा में। लाइक साउथ में काऊ को क्या बोलते हैं वो लिखना है, और गुजराती जहाँ काऊ को क्या बोलते हैं वो लिखना है। इज दैट क्लियर? ये आपको आपके मदर टंग में लिखना है। मदर टंग मतलब मदर टंग मीन्स जो आप भाषा बोले जाते हो वो भाषा में हमें यहाँ लिखना है। क्लियर? मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और आपको यहाँ अपनी भाषा में लिखना है। ओके, इफ़ यू आर हिंदी तो राइट हियर हिंदी वर्ड्स, इफ़ यू आर बंगाली या फिर साउथ कोई भी स्टेट के हो, अपने लैंग्वेज जो मदर टंग आप घर में बोलते हो वो लिखना है। लाइक कौ को आप क्या बोलते हो वो लिखना है, हेन को आप क्या बोलते हो वो लिखना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज। ओके, अगर आपको किसी भी भाषा में नहीं लिखना है तो आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इंग्लिश में लिख दीजिए। ओके, सो पेट्स, हमने डोमेस्टिक एनिमल्स में जाना, अभी हम पेट्स को जानते हैं। ओके, पेट्स हम फार्म में नहीं रखते हैं, पेट्स हम घर में रखते हैं, इसीलिए तो हम उसको पेट्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि पेट्स आर ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड। एनिमल्स दैट we keep in our homes are called pets. Cats, dogs, rabbits and parrots are examples of pets. Okay? तो cat क्या करता है? Cat chases mice. Dog guards our homes. Rabbits कुछ नहीं करता, but parrots जो है, जो हम humans बोलते हैं, उसका मिमिक्री करता है parrot. Okay, so I have also parrot. I show you. So this is rabbit house. Rabbit in a hutch. Rabbit lives in hutch. Okay, so dog in a kennel. This is dog house. Okay, so dog को भी हम घर बनाते हैं, rabbit को भी, parrot का भी घर है। I show you parrot. So pets are our friends. They help us in many ways. A dog guards our house and a cat chases mice away. मतलब डॉग हमारे घर की रखवाली करता है जब हम हैं या ना रहे। ओके, आप जानते हैं डॉग बहुत वफादार जानवर रहता है। आप 2-3 दिन भी आप उसको खिलाओगे ना, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपका याद रखता है वो, है ना। सो डॉग इज ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड पेट एनिमल्स। ओके, सो हमारा चैप्टर जो वीडियो था वो भी मैंने कंप्लीट किया और रीडिंग भी कंप्लीट किया। चिल्ड्रन, रीडिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, जब तक आपको रीडिंग नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, सो आई होप सबने कीवर्ड्स वगैरह लिखा है। सो आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको नोटबुक में समझाया था। ओके, इंडेक्स में पहले आपको आई शो यू। सी इंडेक्स कैसे मेंटेन करना है आपको। ओके, पहले आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है और जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है तो पहले हमने कीवर्ड्स लिखा, फिर हमने लिखा हार्ड वर्ड्स, पहले कीवर्ड्स लिखा, फिर हाउसेस, एनिमल्स के हाउसेस के बारे में लिखा,
वो मेंशन करना है विथ डेट। जिस दिन आपका डेट का होमवर्क आया है सीरियल नंबर, डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर 2 और यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे। ओके, मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का ही मेंशन किया है। आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ प्लस थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। ओके, इंडेक्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बगैर इंडेक्स मेंटेन किए आप नहीं कर सकते। ओके, तो कल मैंने जो कीवर्ड्स दिया था कल परसों वो लिखेंगे आप, और एनिमल्स देयर हाउसेस दिया था वो भी लिखेंगे। तो आज आप लिखेंगे, आज 14th डेट है, तो आप क्या लिखेंगे? हार्डवर्ड्स ऑफ चैप्टर 3। ओके, सो ये आप लिखेंगे। सो मैं आपको बोली थी, मैं आपको मेरे पैरट दिखाऊंगी, माय पेट एनिमल। सी, दिस इज पैरट। Parrot, say something, Mithu. Mithu? Hey, Mithu? This is my parrot. Okay? And there, its house. This is parrot. Okay? Hi, parrot. Hi, Mithu. Mithu. ओके, सो मैंने पैरट को पाला है, सो मैंने पेट आपको दिखाया। ओके, सो आई होप यू गाइस all understood about this chapter. So after vacation we will start to do exercises, question answers and some activities. Okay, तब तक आप वेकेशन एंजॉय कीजिए, लेकिन घर में रह के। ओके, बिकॉज बाहर सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड प्ले ओनली इंडोर गेम्स। ओके, सो हैव अ हैप्पी वेकेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके, सो बाय, see you after vacation. Have a fun. Bye everyone.